السلام علیکم خواتین و حضرات، آئیے شروع کرتے ہیں حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی نازیہ اور مجھے اور آپ کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے یہ گرینڈ فراڈ ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ جس پہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ شروع سے ہی سیاسی کلا بازیاں مارتے آئے ہیں، یعنی سیاست میں، کرکٹ میں نہیں۔ کرکٹ میں تو بندہ کلا بازی مارتا ہے تو پورے حال میں کلیپ ہوتی ہے، واہ واہ واہ، ہال میں کلیپ ہوتی ہے، آئی مین اسٹیڈیم میں۔ یار کو بات جانے بھی دیا کرو، بندہ جب بول رہا ہوتا ہے دانشور تو ایک قطع لفظ اتنے تھلے ہو جاتا ہے، دانشور۔ یس، اور 2-3 دن سے سارے پاکستان کے دانشور ایک ہاتھ میں سگرٹ اور دوسرے ہاتھ میں دند خلال پکڑ کے تو سوچ رہے ہیں کہ کون اصولی سیاست کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ اچھا سیاستدانوں کے اصولوں کو تو چھوڑو، تم بھی کوئی اصول اپنا لو، اس شو کے بھی کوئی اصول ہیں۔ اس شو کے کیا اصول ہیں؟ یہاں پہ دند خلال نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہے، تم نے آتی تقریری شروع کر دی۔ یار تم اصولوں کو رو رہے ہو، تمہیں نہیں نہ پتا 3-4 دن سے دانشوروں کو کیا وقت پڑا ہوا ہے۔ جو مجھے فون کر رہا ہے ہر بندہ اٹھ کے، آڑو گرنیڈ، نعیمہ کینچی، طفیل تھیلا، حاجی لک لک، بشیر آنڈا، جی صاحب یہ سیاست کس طرف کو جا رہی ہے؟ میں کہ ملک میں پٹرول ہی نہیں جانا کدھر ہے۔ ویسے نواز شریف صاحب یار حیرت انگیز طور پر عمران کے بارے میں بہت کھل کر بول رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو شروع سے ہی کافی حملے کرتے آئے ہیں، مگر پہلی دفعہ نواز شریف صاحب نے بھی بڑی ٹکر لی ہے۔ لیکن جو نواز شریف صاحب کا سٹانس ہے نا، وہ میرا خیال یہ بھول رہے ہیں اس وقت کہ اصول پرستی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کے مد مقابل اس بار آصف علی زرداری صاحب نہیں ہے، جن کے بارے میں بات کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن عمران خان کو آڑے ہاتھوں لینا سیاست میں اصول پسندی کے حوالے سے، یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ کیوں جی عمران خان صاحب کا متعلق نواز شریف صاحب کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ان کا کیا آپس میں کوئی اٹکڑک ہے؟ دیکھو جب نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے بارے میں یا پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے بات کرنا اس لیے آسان ہے کہ پیپلز پارٹی جب وہ اقتدار میں آتی ہے 2-3 سال تک وہ موج میلہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے، پھر وہی سڑکوں پر آ کر زندہ باد مردہ آباد، لیکن اپنے اقتدار کے دوران وہ کوئی بہت زیادہ کوئی اصول پرستی کے علم نہیں بلند کرتے، سیدھی حکومت کرتے ہیں اور پھر باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن نون لیگ تو ہمیشہ سے ایک پچھلے کافی عرصے سے تم دیکھو ہمیشہ وہ اصول پرستی کی دعوے دار رہی ہے، اور سب سے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت واحد سیاسی جماعت ہے جو اصولوں کی سیاست کر رہی ہے۔ لیکن جب آپ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا جو ماضی کا حساب کتاب ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے۔ ابھی اے پی ڈی ایم کا جو آپ نے حال کیا تھا وہ سب کے سامنے، عمران خان اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ عمران خان آپ کی اصول پسندی کے سارے ورقے الٹ کے رکھ دے گا۔ نہیں تو وہ نواز شریف صاحب نے اس کا جواب دے دیا نا کہ اے پی ڈی ایم کا جو معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، تو وہ پیپل پارٹی نے حصہ لیا، اس لیے میں نے بھی لے لیا۔ یہ کیا بات ہے یار، یہ اصول پرستی ہے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اس کا مطلب تو بالکل یہی ہے کہ جی فلاں شخص غلط کام کر رہا تھا اس لیے میں بھی اس میں جمپ کر گیا، میں نے بھی غلط کام کر لیا۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ لوگوں نے طے کیا تھا کہ الیکشن کا ساری جماعتیں مل کے بائیکاٹ کریں گی، ویسے تو یہ بھی کہیں نہیں تھا کہ جی اگر ایک جماعت کر جائے گی تو باقی جماعتیں بھی بائیکاٹ سے باہر آ جائیں گی، ایسا نہیں تھا بھئی۔ اگر پیپلز پارٹی نے بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا وعدہ خلافی کا ارتکاب کرتے ہوئے بائیکاٹ کا فیصلہ بدل دیا تھا تو آپ کو تو اپنے اصول پر قائم رہنا چاہیے تھا نا، آپ کو تو اپنی زبان کا پاس کرنا چاہیے تھا نا۔ آپ تو پچھلے کئی ماہوں سال سے اس کے ساتھ آپ باقاعدہ یعنی اصول پرستی کے لمبردار بنے ہوئے ہیں، اور آپ نے فوری طور پر آپ نے اس کے بعد یہ عذر پیش کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی میرے اوپر میرے جو ساتھیوں کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اور پھر یہ جو یار سیاست میں غلطی ہو جاتی ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ عمران خان نے نہیں شروع میں پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا، بعد میں اس کو پتا چل گیا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں میں کوئی عمران خان کے موقف کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، بلکہ میں تو نواز شریف صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں جب وہ عمران خان پر یہ کہہ کر تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان ایک طرف تو انقلابی بنتا ہے اور کلچر کی تبدیلی کا دعوے دار ہے، لیکن دوسری طرف اپنے جب امیدواروں کا چناؤ کرتا ہے تو وہ اپنے اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بلکہ میں تو خود اس بات پر عمران خان کا کریٹک ہوں۔ انہوں نے کون سا چناؤ کر لیا؟ یہ جو پنڈی کے الیکشن میں، لاہور کے الیکشن میں
बार बार बात की जाती है। हमने अपने प्रोग्राम में भी इमरान खान पर इस हवाले से तो कोई बात नहीं, इतनी गलती इमरान खान से भी हो सकती है। नवाज शरीफ साहब के अधे बंदों की तो सर्दी जाने निकल आई है, गोली फलाटी है। फिर ये क्या बात है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी सियासत का ये अजीब चलन है कि आप दूसरे को जो असूल परस्ती की बात करता है, आप उसको फौरन ये ताना दे देते हो कि तुम किस मुंह से असूल परस्ती की बात करते हो, तुमने फलां काम गलत किया है। भाई अगर उसने गलत काम किया है तो वो आपके लिए वो दुरुस्त कैसे हो सकता है? अगर उसने 4 उम्मीदवारों को गलत टिकट दिया है तो आपने तो फिर सैकड़ों उम्मीदवारों को गलत टिकट दिया है। उसके लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे हम कह देते हैं यार तुम दाढ़ी रखकर फलां काम कर रहे हो। यार दाढ़ी रखने के लिए, दाढ़ी रखने वाले के लिए भी वो काम गलत है, बगैर दाढ़ी वाले के लिए भी वो काम उतना ही गलत है। इसका मतलब है मैंने ठीक बात की है। तुम हमेशा ठीक बात करते हो। दानिशवर ने मेरी बात मानी। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की जो असूल परस्ती की बातें हैं ना, यकीनन दिल को बहुत भली लगती है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के उन चंद पॉलिटिशियंस में से हैं जो असूल परस्ती के हवाले से दुरुस्त बात कह रहे हैं। और वाकईतन हमें अब ये जो बेअसूली का कल्चर है, ये बिल्कुल इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना पड़ेगा, तभी हम किसी सही ट्रैक पर आ सकेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ अलमिया ये है कि जब वो असूल परस्ती की बात करते हैं, यकीनन वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनकी पार्टी का जो कल्चर है, उनकी जो सियासी चलन है उनकी पार्टी का, वो यानी उनमें जब उस पर नजर डालते हैं तो फिर कॉल और फेल में उनके बहुत ज्यादा तजाद नजर आता है। उनको या तो अपने जो दावे हैं उनका जरा ग्रेड नीचे लाना पड़ेगा और अपना जो अमल है उसको थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा, थोड़ी सी मुताबिकत पैदा करनी पड़ेगी। यानी ये मामला 80 की दहाई में तो ठीक था, लेकिन आज जबकि वो एक बिल्कुल वाइब्रेंट किस्म के मीडिया को फेस कर रहे हैं, लोगों की बड़ी बारीक बारीक बातों पर नजर है, उस वक्त ऐसे हालात में फिर उनको अपने कॉल फेल में कदरे मुताबिकत पैदा करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त वाकई बड़े असूलों की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन। मगर बदनसीबी क्या है, पूछो एक दानिशवर से जरा। पूछ रहा हूं। जब वो तकरीर फरमा रहे होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ना, तो टीवी के ऊपर जिस फ्रेम में वो खड़े होते हैं ना, उनके पीछे को एक अद्धा ऐसा बेअसूला बंदा जरूर खड़ा होता है जो दिल में ये सोच रहा होता है कि भैया साहब किन असूलों की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। मैं केड़ा बाज आ जाना। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा। यार ये हम कल भी असूल परस्ती के हवाले से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम $60 अरब तक पहुंच गई। $60 अरब? जी। हाय 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 हाय, कोई थोड़ी रकम नहीं होती $60 अरब। मैं भी कहूं ये मुल्क में गवर्नमेंट इतनी खुशहाल क्यों फिर रही है? प्रोटोकॉल में 10-10, 12-12 गाड़ियां तो वजीरों के पास है, 70-70, 80 गाड़ियां लिए फिरते हैं बड़े लोग। ये $60 अरब आया है, इसीलिए 2-2, 3-3 दफ्तर, 20-25 मुलाजिम आगे पीछे। अब बड़ी रकम है $60 अरब। आहिस्ता आहिस्ता कौम भी खुशहाल हो जाएगी। आए के पास भी हैमर आ जाएगी। हैमर साहब, खबर गौर से सुन लिया करो। पाकिस्तान पर जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं उनकी मालियत $60 अरब तक पहुंच गई है। $60 अरब कहां से आ गए? करिया। हाँ जी। मेरी हैमरी पंचर कर दी। $60 अरब हमने देना जी। हमने कौन सा देना है? अगली खबर पड़ा तो मौज करने दो इनको। देना पड़ता है कर्जा, हर साल देते हो। अच्छा जी। हाँ जी। बेवकूफी है, ये देने की जरूरत क्या? और यार 36 बहाने होते हैं, बंदा पैसे देने के वक्त पागल बन जाए। कई बैंकों के पैसे लेके ये बड़े बड़े लोग नहीं मुकर गए हुए, 100 बहाने निकाल लेते हैं। अमेरिका के साथ भी निकालने को बहाना, भाई जी हमने नहीं लिया, दहशत जाली है। या केस कर देंगे, भाई जी हमें कारोबार में काटा पड़ गया है, अब हमारे पास नहीं है, हम 50 रुपए महीना दे सकते हैं, लेना तो ले। आप ही उधर से 1.5 लाख रुपये की टिकट लेके कौन 50 रुपये लेने आया करे? कौन ने कहा जाओ माफ किया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है पाकिस्तान में हालात गंभीर हो चुके हैं, लोग खुशियों को तरस रहे हैं। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। वाह जी वाह, ये दोनों साइडों से।
क्या कह रहे हैं मेरे मुर्शद पाक? कह रहे हैं जी अवाम खुशियों को तरस गए हैं, मुल्क के हालात बहुत गंभीर हैं। हाय 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 हाय, ठीक कह रहे हैं मेरे मुर्शद। बेड़ा गर्क हो गया यार, अवाम बेचारी देखो कितनी परेशान हो गई है। ये सुनते ही नहीं नवाज शरीफ, इमरान खान और ये मुनव्वर हसन साहब और ये जितने भी लोग हैं, कलब कलब के गवर्नमेंट पागल हो गई है कि खुदा के वास्ते देखो मुल्क के क्या हालात हो गए हैं, इनको ठीक करें अल्लाह का नाम लेकर। हुकूमत कह रही है, अपोजिशन नहीं कह रही, हुकूमत खुद एतराफ कर रही है हालात की खराबी का। समझ नहीं आई खबर? मेरे मुर्शद पाक आजकल गवर्नमेंट में है। जी अल्लाह खैर करे, मुर्शद पाक का अपोजिशन वाली बातें शुरू कर दी हैं, कुछ होने तो नहीं वाला। मुझे बता दें सरकार, आपको तो किसी ने कुछ नहीं कहना, मुरीदों ने बड़ा खजेल होना है। हंसना यार तुम्हारी मेहरबानी है, डर से मेरी खौफ से जान निकल गई यार तुम। कबूतर चेहरों को कभी नहीं भूलते, कोई शख्स नए रूप में भी सामने आ जाए तो कबूतर उसे पहचान लेते हैं, माहिरीन की तहकीक। अच्छा जी, जी लो जी, एक तरीके से पाकिस्तान में बेहतरीन गवर्नमेंट बन सकती है। कैसे? अगर सारी आवाम जो सिर्फ तमाशाई का रोल करे और कबूतर वोट डाले। हाँ हाँ, वो माहिरीन का कहना है कि कबूतर जितने मर्जी बंदा बहरूप बदल के सामने आए, वो शक्ल से पहचान लेते हैं कि ये कौन है। अमान से बड़ा मजा आया इलेक्शनों में अगर सिर्फ कबूतर वोट डाले तो। हाय हाय हाय, जलसे जुलूस भी सिर्फ कुर्सियों पर बैठ के कबूतर सुन रहे हो, उधर से सियासतदान तकरीर करे। ईमानदारी मेरी पहली तरजीह है, आगे से कबूतर शुरू हो जाए, गुटरगू गुटरगू गुटरगू, फिटे मुंह गुटरगू गुटरगू। पहले बैंक का करिया तो वापस करो, गुटरगू 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 गुटरगू। कोई सियासतदान कहे कि तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है, आगे से कबूतर कहे गुटरगू 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 गुटरगू। 9 साल मार्शल दौर में भी वजीर रहा है, गुटरगू गुटरगू गुटरगू, फिटे मुंह गुटरगू 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 गुटरगू। कोई कहे कि हमेशा मेरिट मेरी पहली तरजीह रही है, गुटरगू फिटे मुंह गुटरगू फिटे मुंह गुटरगू फिटे मुंह गुटरगू फिटे मुंह गुटरगू फिटे मुंह, मेरिट गुटरगू फिटे मुंह। अन्ना भतीजा पीआईए में पायलट लगवाया हुआ है, गुटरगू फिटे मुंह गुटरगू फिटे मुंह। सबकी जानो माल की हिफाजत की जाएगी, गुटरगू फिटे मुंह गुटरगू फिटे मुंह गुटरगू फिटे मुंह। मगर नहीं यार, हमारे सियासतदान बहुत तेज है, उन्होंने अपनी तकरीरें बदल लेनी है कबूतरों को आराम करने के लिए। मैं हुकूमत में आके बाजरा सस्ता कर दूंगा, है गुटरगू गुटरगू जिए तू गुटरगू गुटरगू जिए तू गुटरगू गुटरगू जिए तू। अगली खबर पढ़ रहने दो इस मंसूबे को। गुजरावाला के नवाही गांव टावा में रेलवे लाइन पर फाटक न होने की वजह से अब तक दर्जनों अफराद हादसात की नजर हो चुके, हुकाम की तरफ से मुसलसल चश्मपोशी। चलो हर बंदा पीछे ही पड़ गया हुआ है गवर्नमेंट के। यार फाटक लगाना को मामूली काम होता है, नहीं लगा हुआ तो फिर क्या हो गया। वजीरे रेलवे को पहले थोड़े से आपे हैं बेचारे को, 8-8 घंटे गाड़ी लेट करवाना को आसान काम नहीं होता। किसी दिन भी 7 घंटे लेट हो जाए 8 की बजाय, सवारियां सारी अद्धी जो है वो रह ही जाए। उनको तो पता होता है कि 8 घंटे गाड़ी लेट है, आराम से जाएंगे, नो प्रॉब्लम, टांगा आहिस्ता चलाओ भाई, खैर। उधर जाए तो पता चले जी गाड़ी 7 घंटे लेट थी, पहले चली गई है। फिर हर दूजे तीजे महीने 2-3 गाड़ियां बंद करवाना कि अब ये नहीं चलेंगी, कोई छोटा काम है ये। ऊपर से चलती ट्रेन में से डीजल खत्म करना, हाय 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 हाय, फिर उसे अल्टा के टैंकी में पेट्रोल, पूरी रेलगाड़ी अल्टाना को छोटा काम नहीं होता, मोटरसाइकिल तो फटाफट उल्ट जाता है। थोड़ी मेहनत नहीं कर रही रेलवे, ऊपर से फाटक बनाए फाटक बनाए फाटक बनाए, छोटा काम है यार फाटक बनाना। पाइप खरीद के उसको पहले ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बीच में काटा, अल्लाह माफी है, हाय 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 हाय। वेल्डिंग के टोच लगने, फिर उधर शटूल रखना, फिर उधर आके तो बंदा बैठाना, फिर वजीर आजम साहब मुर्शिद पाक मेरे आए, वो फारग होंगे तो आके अफ्ताह करेंगे। छोड़ो हमें इतना बड़ा से आपा, बंदे मार रहे हैं तो फिर क्या, भूखे भी तो मार ही रहे हैं ना वैसे ही। नहीं वाकई यार, ये अटावा के हवाले से तो हर दूसरे चौथे दिन खबर आई होती है कि वहां पे रेलवे क्रॉसिंग पर कोई ना कोई हादसा पेश आता है। काले ना पड़ो यार, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां बंद हो रही है ना, एक दिन रेलवे खत्म हो जाएगा, फिर फाटक की नई जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसी बात। नाज़रीन, ये वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का।
बस सियाने कहते हैं ना होगी रेल गड्डी और ना बजेगी बस। तुम्हें याद है ना, हमने कुछ अर्सा पहले अपने शो में खास तौर पे जिक्र किया था कि ये जो ईमेल या इंटरनेट के जरिए फ्रॉड हो रहे हैं, बिल्कुल इनसे बचा जाना चाहिए। और खास तौर पर ये भी उस वक्त किसी चक्कर में फंसा हुआ था। हाँ और मैंने इसको ये नसीहत की थी कि खुदा के लिए जरा होशमंदी से काम लेना। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे बता रहा था कि इसका एक दोस्त इसकी नसीहत पर अमल करते हुए $5000 लुटवा बैठा। इनके दोस्त के पास $5000 थे तो लुटवा बैठा और उसने डाकू के साथ उधार कर लिया। अब बताओ ना अपनी बेवकूफी की दास्तान। और दोस्त मेरा एक है इंटरनेट फ्रेंड आदमी, यानी इंटरनेट पे अक्सर वो बैठता है। अच्छा। बेचारा बेकार था, आजकल नौकरी उसको मिल नहीं रही थी। वो कई नौकरी आई है इंटरनेट के ऊपर का, जनाब ये ऑयल कंपनी में आपको बहुत अच्छी जॉब जो है वो ऑफर कर रहे हैं हम। अच्छा। मुझे उसने पूछा, कहता है यार देखो ये रहा हॉलैंड से मुझे ईमेलें आनी शुरू हो गई हैं, ये लिखा हुआ है इंटरनेट के ऊपर के नौकरी ऑफर कर रहे हैं। फिर मैंने कहा वेरी गुड, हॉलैंड जो है ये रहा मुझे पसंद, नाम बड़ा पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कोई कह रहा है हॉलैंड। इतनी जमीन, लैंड जमीन को कहते हैं। ओह, कुछ अच्छा। ज्यादा जमीन हो तो उसको देख के बंदा कहता ना हाँ इतनी जमीन। तो मैंने कहा कर दो अप्लाई। उसने अप्लाई कर दिया। वो अप्लाई किया जब उसने, तो उन्होंने कहा जी कि आपकी जो है ना एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो गई है। ऑयल कंपनी वालों ने लिखा और उन्होंने जनाब कहा कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू शुरू हो गया उधर से, टेलीफोन के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू किया। टेलीफोन पे? हाँ हॉलैंड से। उसने बेचारे ने सारा इंटरव्यू दिया, बेहतरीन जवाब दिए, सारे टेक्निकल क्वेश्चन भी उन्होंने पूछे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये सही ऑयल कंपनी है कोई, वेरी गुड। सही। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए $2000 फीस है। अच्छा। वो भेज दे। मुझे पूछने लग गया, मैंने कहा यार देखो इंटरव्यू भी उन्होंने किया है, सारा बताया भी है, उधर के कई ओहदेदारों ने तुम्हारे साथ गुफ्तगू की है, तो भेज दो $2000। मशवरा भी बेचारे ने किससे किया है, किस्मत खराब। यार वो प्रोग्राम देख रहा होगा, हमें उसे पकाओ ना फजूल। पहले वो मुझे दिन रात दिल में बददुआएं दे रहा है। $2000 उन्होंने भेज दिया। उन्होंने कहा वेरी गुड, आपकी जो है एप्लीकेशन वो रजिस्टर्ड भी हो गई है। उन्होंने उसको कागजात भी भेजे वापस। अच्छा। उस पर मोहरे भी थी। उसने मुझे ईमेल निकाल के दिखाई है अपने, वो जो होता है ना अपना क्या मशीन छोटी, हाँ जी वो प्रिंटर से। प्रिंटर से। जी, बड़ी जी। सियानी लड़की है यार, ये कहीं क्लर्क तो नहीं रही हुई। ला जनाब, मैंने कहा कि यार वेरी गुड, ये तो काम बन गया, मुबारक भी उसने मुझे दी, मैंने भी उसे मुबारक दी। उन्होंने फिर कहा जी कि अब आपके जो कागजात हैं दफ्तरी, जो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, इसकी प्रोसेसिंग के लिए आपके से $3000 और चाहिए। ओह माय गॉड। मैंने कहा यार जब एक काम हो ही गया है, जब हो ही गया है एक काम, ऊपर से उन्होंने कहा कि आपको $20,000 देंगे तनख्वाह। उफ। तो मैंने कहा $20,000 पहले महीने समझना, तुम मुझे $15,000 मिली है, 5,000 बीच में से लग रहा है ना, कोई बात नहीं। लो जी, उसको उन्होंने जनाब GM लगा दिया अपनी कंपनी का, हॉलैंड वालों ने। ओह माय गॉड। उस बेचारे ने को भज नस करके 1-2 बाकी पैसों की जीने शीने भी खरीद ली। अच्छा। लाल सुरख शर्ट भी खरीद ली इंग्लिश लगने के लिए। अच्छा। मैंने कहा यार भेजो फटाफट यार $3,000 कम काओ बीच में से। उस बेचारे ने $3,000 भी भेज दिया। मैंने फिर उसके हमें खते पड़ गया लाड से। मैंने कहा मुझे चाइनीज रोटी खिलाओ। चलो भाई मुबारक होती है यार, दोस्त जो हैं वो कहीं अच्छे काम पे लग जाए तो बंदा एक दूसरे की दावत करता ही है। उसने मुझे खाने के लिए दोस्ती होती है। यार ना करो यार, वो देख रहा होगा, खुदा के वास्ते ना करो। उसने मुझे 1400 की रोटी भी चाइनीज खिला दी। ओह माय गॉड। उसके बाद अब वो बेचारा फोन करता है जिन नंबरों से उसको कॉलें आती रही हैं और जो कागजात पे फोन नंबर लिखे हुए हैं वहां से को उठा ही नहीं रहा। हाँ, क्यों उठाएंगे जी? बस क्या बताऊं तुम्हें, मुझे उसके 5,000 की फिक्र नहीं है। हैं? वो मुझे कहता कि जो 1400 की तुमने रोटी खाई है चाइनीज, वो मेरी वापस करो।
بنتا ہے ان کا. یار میں نے تمہیں کتنی وضاحت کے ساتھ بار بار یہ بات سمجھائی تھی اس وقت لاؤنج میں بیٹھ کے میں نے اس کو ہاتھ جوڑ کے سمجھایا تھا کہ خدا کے لیے یہ جتنی بھی کورسپونڈنس ہوتی ہے یہ ای میل کے ذریعے کبھی نوکری کی آفر کی جاتی ہے, کبھی کسی امیر کبیر بیوہ کی طرف سے شادی کی آفر کی میل آتی ہے, کبھی اس طرح اور کبھی آتا ہے کہ جی میں فلاں بینک کا ڈائریکٹر بول رہا ہوں اور فلاں ہمارے پاس ایک کسی اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے, آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں, ہم اس میں, اور پھر اس میں $100 سے بات شروع ہوتی ہے اور $10,000 تک جاتی ہے, اور اتنا وہ یعنی وہ حقیقی سارا معاملہ لگتا ہے کہ عقل مند سے عقل مند جو آدمی ہے وہ بھی چند لمحے کے لیے اپنی عقل گنوا بیٹھتا ہے. سر آپ انٹرنیٹ کی بات کریں, اب تو ہر دوسرے بندے کے پاس موبائل فون ہے, تو فیک کال موبائل پہ آ جاتی ہے کہ اس طرح آپ کا 12 لاکھ کا انعام نکلا ہے, آپ اتنے پیسے جمع کرائیں, اتنے واؤچرز بھریں تو آپ کو یہ 12 لاکھ روپے, یا فلاں انعامی اسکیم میں آپ کی کار نکلی ہے اور اتنے پیسے جمع کرا دیں, 2-3 لاکھ روپے تو معمولی بات ہے. یار میرے جس دوست کا $5,000 کیا ہے نا, اچھا ہی ہوا ہے. کیوں یار یہ مجھے ہی عقل مند سمجھتا رہا ہے, یہ ناقابل معافی جرم ہے. تو محلے میں اور کسی سے بھی مشورہ کر لیں یار, ہاتھ دو گئی. فراڈ تو ایسا ہو رہا ہے کہ تم سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. ہمارے محلے کا یار ملک سیف بیٹھا ہوا دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا, پہلے ایک مریض دوائی لے رہا ہے, ڈاکٹر نے اسے دوائی لے کے دی, وہ پرچی لے کے ادھر آیا, کہتا ہوئے یار اللہ خیر کرے, اس کو کہتا بھائی جی آپ کے پاس سائیکل ہے؟ وہ ملک صاحب کہتا ہے بالکل ہے سائیکل. کہتا ہے یار دینا یار, میں نے دوائی لانی ہے, بڑی سخت طبیعت خراب ہے میرے مریض کی. وہ صاحب اچھا آدمی ہے, اس نے چابی دے دی, اس نے کہا کہ نویں سائیکل ہے, دھیان سے لے کے جانا. وہ لے گیا سائیکل فٹافٹ کو, آدھے کو گھنٹے بعد وہ واپس آیا, آگے کہتا بھائی جی آپ کی سائیکل چوری ہو گئی ہے, ادھر میڈیکل اسٹور میں دوائی لینے گیا تھا تو جناب ساتھ ہی کھڑی کر کے گیا تھا تو وہ چوری ہو گئی. تو کہتا آپ گھبرائیں نا, میں آپ کو نویں سائیکل لے دیتا ہوں, چلیں میرے ساتھ. وہ صاحب کہتا ہے یار یہ تو اچھا شریف آدمی ہے. وہ ملک صاحب بھی بیچارہ شریف آدمی, اس کی بات میں آ گیا کہ بالکل ٹھیک ہے. لو جی اس کو ساتھ لے گیا سائیکلوں والی دکان پہ, نویاں سائیکلاں جہاں بکتی تھی. ادھر جا کے اس نے کہا جی نویں سائیکل کون سی کمپنی کی تھی؟ اس نے کہا جی فلاں کمپنی, دیو جی سائیکل. سائیکل اس نے نویں لے کے اس پہ شیشے لگوا کے, ٹلی بھی لگوا کے, چلائی بھی ٹلی. اس نے ملک صاحب سے کہا بھائی جی چلا کے دیکھ لیں یار. اس نے چلا کے دیکھی, اس نے کہا ویل ڈن, ویری گڈ, کیریئر بھی لگ گیا, سٹینڈ بھی لگ گیا, اس کے علاوہ آپ کو دا تو لگ نہیں سکتا اس پہ. سائیکل پہ یہی چیزیں لگتی ہیں. لو جناب وہ بندہ جو لے کے گیا تھا نا سائیکل لے کے دینے کے لیے, کہتا ملک صاحب آپ نے تو چیک کر لیا, مجھے بھی کر لینے دے چیک. یہ ہوتے ہی طرح کے سائیکلوں والے. سائیکل پکڑ کے وہ چلانے لگ گیا, چلاتا چلاتا غائب ہو گیا, دوسری بھی لے گیا سائیکل. اوہ مائی گاڈ. اور وہ ملک صاحب سیف صاحب کو بھرنے پڑے پیسے؟ دکانداروں نے ان کا بٹھایا ہوا تھا ادھر, مجھے انہوں نے فون کیا کہ یہ کہاں مر گئے ہو. میں ادھر پہنچا, میں نے کہا جی, کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ مجھے جانے نہیں دے رہے, کہہ رہے سائیکل کے پیسے دو. دل تو مرا کرے کہ یار کیا تم معصوم آدمی ہے صاحب, کو بالکل ہی تمہیں سمجھ نہیں آئی. دل تو میرا کرے کہ ایک سائیکل میں اسے کہوں کہ یار میں تمہیں لے دیتا ہوں, فکر نہ کر, اور سائیکل تیار کروا کے پھر ٹرائی کے طور پہ میں لے کے نکل جاؤں, پھر اسے پتا چلے کہ کیسے سائیکل لے کے دیتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار آج ایک بڑی شاندار غزل نظر سے گزری ہے, وہ میں نے تمہیں سنانی ہے. اس شرط پہ سنوں گا کہ پھر تم پلیز نہیں رہنے دو, میں نے نہیں سنانی, رہنے دو. اور جو عذاب برداشت کرنا کہتا ہے میری بھی سننی ہے بعد میں, رہنے دو, میں نہیں سنانی. نہیں میں نے نہیں یار سنانی. تم تو اس طرح تڑفے ہو جیسے نعوذ باللہ میں کو ملک کے خلاف بات کر رہا ہوں. نہیں سر ویسے شاعری نظم یار تمہیں سنانے لگا ہوں, ہاتھ دو گئی ہے تمہارے والی. یار خدا کا خوف کرو, تمہیں کوئی خیال نہیں آتا, رحم نہیں آتا شاعری پہ, جب تم اس کو نظم کہتے ہو غزل کہہ دیتے ہو آرام سے. یا اللہ اسے معاف کر دینا, یا اللہ معاف کر دینا اسے. اللہ جانتا میں جس دکان پہ جاؤں, سبزی لینے جاؤں, دہی لینے جاؤں, گوشت لینے جاؤں, ہر جگہ پہ مجھے لوگ کھڑے کر کر کے کہتے ہیں کہ جی تمہاری مہربانی, ہمیں اپنی نظم سنا جاؤ. میں تو منہ نہیں لگاتا ایسے کہ مجھے جتنی دیر تک کوئی خود نہ کہے میں تو کبھی سناتا ہی نہیں. یہ تو میں کہتا ہوں کہ چلو تم میرے بڑے بھائی ہو, کوئی بات نہیں. بڑے بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ, میں نے تمہیں حسب حال میں آج تک تم سے فرمائش کی ہے, خود ہی شروع ہو جاتے ہو تم.
चलो तुम्हारी मेहरबानी है, सुन लो यार, किसी छोटे की सुने तो अल्लाह बढ़िया देता है, फिर अल्लाह बरकत डालता है काम में, ऐसे नहीं करते होते। अच्छा यार, मैं तुम्हें मोहसिन नकवी साहब की एक गजल सुनाना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत है। हा सुनाओ जरा इरशाद। नकवी साहब लिखते हैं, वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वो सच कहे न कहे एतबार करना। हाय 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 हाय, क्या सियासी शेर है, हुक्मरान जो कहे एतबार करना। सुनो, ये तुझको जागते रहने का शौक कब से हुआ? जब से लोड शेडिंग शुरू हुई। ये तुझको जागते रहने का शौक कब से हुआ, मुझे तो खैर तेरा इंतजार करना है। वाह वाह। वो मुस्कुरा के नए वसवसों में डाल गया, ख्याल था कि उसे शर्मसार करना है। हवा की जद में जलाने हैं आंसुओं के चिराग, कभी ये जश्न सरे राह गुजार करना है। तेरे फिराक में दिन किस तरह कटे अपने, कि शुगल शब तो सितारे शुमार करना है। खुदा खबर ये कोई जिद के शौक है मोहसिन, खुदा खबर ये कोई जिद के शौक है मोहसिन, खुद अपनी जान के दुश्मन से प्यार करना। सिर्फ आधार लेने के लिए दुश्मन से प्यार करना है हमारा और अमेरिका वाला साहब। अच्छा चले अपनी शायरी पेश करें फिर। नहीं रहने दो, अगर एक बंदा सुनना ही नहीं चाहता तो शुक्र बंदा हमें किस लिए फिजूल। चलो बस ठीक है, शुक्र। नाज़रीन, यहाँ में ठहर जाओ यार, आराम से बैठो तुम। तो अकल किया करो यार, तुम फटाटी शुरू हो जाते हो, पक्का ही हो जाते हो। तो खुद ही तुमने कहा नहीं सुनानी। वो देखो तो सही ऑडियंस कैसे शोर मचा रही है। कौन सी इधर इशारा करके क्यों ऑडियंस कह रहे हैं? मैं अकेली बैठी हूँ अजीज साहब। तो एक ऑडियंस भी हो सकती है, परवेज मुशर्रफ की लाखों ऑडियंस नहीं देखी कभी। ला जी, फूलों और हार के बगैर अय्यी अर्ज करता है। इमेजिन कर लेना फूल पड़ रहे हैं आपके ऊपर। हाँ यार है, वो तो मेरे दिल में होता ही है हल्का हल्का। हाँ, बस वही सोचे। हाय हाय हाय, ये बात समझ में आई नहीं और बेबे ने समझाई नहीं। अच्छा अर्ज किया है। अच्छा। ये बात समझ में आई नहीं और बेबे ने समझाई नहीं, फुफड़ के मामू की साली। जरा गौर से सुनो, रिश्तों का मामला है। फुफड़ के मामू की साली, खाला की वड्डी ताई नहीं। फुफड़ के मामू की साली, खाला की वड्डी ताई नहीं, और उसकी चाची का बेटा मेरे देवर का भाई नहीं। अर्ज करता है ये, जो चांद पे चरखा काटती है वो लड़की है, वो माई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे, वो इसी की एज फेलो है। वो चांद पे चरखा काटती है वो लड़की है, वो माई नहीं। क्यों बुढ़िया उसको कहते हो जब उसने शादी कराई नहीं। टेंशन है कपड़े क्या पहनूं, धोती कुर्ते में टाई नहीं। कल जब इसने टाई वाये कर दी है कि टाई ऐसा लिबास नहीं है कोई भी पहन सकता है, उसके बाद ये शेर लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड। टेंशन है कपड़े क्या पहनूं, धोती कुर्ते में टाई नहीं, ये अपना कौमी नारा है, बत्ती तो कल से आई नहीं। ये अपना कौमी नारा है, बत्ती तो कल से आई नहीं, बादल और मच्छर दोनों हैं, इस डर से मंजी डाई नहीं। हाय हाय हाय, ये की शायरी से जो गुर्बत निकलती है ना, हाय हाय, गुर्बत और हमाकत। हो या अल्लाह, ये को अमीर शायरों की जेलसी से बचाना। अर्ज किया है, बादल और मच्छर दोनों हैं, इस डर से मंजी डाई नहीं, यहाँ कोटे कोटे पानी है, बासा ने लिफ्ट कराई नहीं, सड़कों के पानी पर बोले ये इतनी भी गहराई नहीं, चाहे वो थोड़ा टक्कड़ है, वो बंदा है, वो नाई नहीं। आओ फिर पेंजा चाड़ आए, मैंने तो फैंटी लाई नहीं, कॉलेज में झगड़े की रीजन जा वो मेरी पर जाई नहीं। हाय 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 हाय, ये कॉलेज में झगड़े की रीजन जा वो मेरी पर जाई नहीं, अब 2 दिन घर ही बैठेंगे जब सीएनजी भरवाई नहीं। क्या ये ने सीएनजी की बंदिश पे देखो शायरी की है। बहुत आला बहुत आला। अब 2 दिन घर ही बैठेंगे जब सीएनजी परवाही नहीं, ये शुक्र करो कि पढ़ दी है मैंने, ये शायरी गाई नहीं। अभी कुछ और जुल्म बाकी है, ये हमें ब्रेक ले लो।
लो ब्रेक नारे लग रहे हैं इस वक्त टीवी के आगे। बहुत जबरदस्त। तुम्हें अगर टीवी के बाहर नजर आता हो तो तुम्हें पता हो ना, ये अजीजी की आंख ही देख सकती है। देखो ये बैठ जाओ बेटे, कोई बात नहीं, बस खत्म हो गई है शायरी। मेरा बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब बहुत अरसे बाद आज तशरीफ लाए, आज अब हमारे शो में आपने बुलाया ही आज है, वरना मैं तो फारग ही होता हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मीडिया के ऊपर जाके लोगों को हकीकत से आगाह करूँ। भट्ट साहब हमने अपना रिपोर्टर कई बार आपके पास भेजा है, लेकिन आप दफ्तर में नहीं होते। और जी अगर मैं दफ्तर में नहीं होता तो बाहर साथ ही वो दही पल्ले वाली रेडी है, वहां आके पूछ लिया अच्छा। उधर बैठा होता हूँ। रेडी पे क्या कर रहे होते हैं आप? आपका क्या ख्याल है, दही पल्ले वाली रेडी पे बंदा कटिंग कराने जाता है? जाहिर है दही पल्ले खा रहा होता हूँ, को मेरा वो साइड बिजनेस तो नहीं है ना। भट्ट साहब आपको बुलाए क्या? अक्सर तो आप बाहर होते हैं। नहीं, सुबह मैं बाहर निकलता हूँ, शाम तक तो वापस घर चला जाता हूँ। मेरा मतलब है मुल्क से बाहर होते हैं। आप मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है जी, चूंकि आगे आईसीसी के चेयरमैन का इलेक्शन भी आ रहा है और सबसे ज्यादा फेवरेट उम्मीदवार तो मैं ही हूँ। अच्छा हाँ जी। भट्ट साहब ये तो आप हमें खबर दे रहे हैं अस्पताल के जरिए कि आप आईसीसी की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ, इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी सुनेंगे। इजाज भट्ट चेयरमैन आईसीसी इंटरनेशनल कुकिंग क्लब। बी सीरियस प्लीज। ये खाने पीने वाली गुफ्तगू में मैं हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं करता। इट रिक्वायर लॉट ऑफ सीरियसनेस। अच्छा आज भट्ट साहब एक बात तो बताएं, आपसे हर कप्तान लड़ाई क्यों कर बैठता है? पता नहीं इनको क्या को जेलसी है मेरे साथ, हालांकि मैं अपने हिस्से की बोटियां भी इनको दे देता हूं। लेकिन झगड़ा तो भट्ट साहब सुना है कि सिलेक्शन से होता है। यस यू आर राइट, सिलेक्शन पे भी कई दफा झगड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कि कीमा पकाना है, ये कहते हैं कि गोश्त पकाना है। मैं बड़ी दफा समझाता हूं कि आप मेरे दांत नहीं गोश्त चबा सकते यार, कीमा पका लो। नहीं जी नहीं, गोश्त ही पकाना है। उस पे हो जाता है झगड़ा किसी। भट्ट साहब टीम की सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मगर जब टीम की सिलेक्शन के लिए बैठते हैं तो खाना पीना भी वहां होता ही है ना जी। तो वो पहले खाने पीने पे झगड़ा हो जाता है, तो फिर टीम की सिलेक्शन पे तो जाहिर है उस वक्त मूड ऑफ होते हैं सबके, तो झगड़ा तो होना ही होता है। लेकिन भट्ट साहब फिर भी क्या वजह है कि हर कप्तान आपके खिलाफ डट जाता है? ओनली जेलसी। जेलसी। देखे ये तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों से ज्यादा बोर्ड का चेयरमैन पॉपुलर है। मेरा भी एक नाम है इजाज भट्ट। वैसे तो ये दो नाम है, इजाज और भट्ट। चूंकि भट्ट बजाते खुद एक मुकम्मल इंसान होता है, बल्कि ज्यादा इंसान होता है। अच्छा ज्यादा इंसान होता है? अक्सर तो यही देखने में आया है। कैसे? देखे भट्टों को एक आदत होती है ज्यादा होने की। और मैं चूंकि भट्ट हूं इसलिए मैं खुद भी ज्यादा हूं और मेरा नाम भी खिलाड़ियों से ज्यादा है, इसलिए जेलस हो जाते हैं मेरे से। अच्छे भट्ट हैं भट्ट साहब, आपने सलमान भट्ट को टीम से बाहर निकाल दिया। इतना छोटा भट्ट मुझे वारा ही नहीं खाता। मैंने उसे 2-3 दफा मशवरा दिया कि अपनी शनाख्ती कार्ड से भट्ट हटवाओ या फिर ज्यादा हो जाओ। जिस साइज के तुम भट्ट हो इतने साइज की तो भट्ट बोटी खाते हैं। तो वो मेरी बात फॉलो नहीं की उसने, इसलिए मैंने उसे निकलवा दिया। अच्छा भट्ट साहब सुना है आपने रिजाइन भी कर दिया, जरदारी साहब ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, मैंने इस्तीफा भेज दिया था जरदारी साहब को। जब जरदारी साहब ने मेरा इस्तीफा पढ़ना शुरू किया, अभी आधा ही पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि देखो भट्ट साहब, सारा स्टेडियम फुल भरा होता है जब मैच होता है, हर बंदे ने कार्ड उठाया होता है, बूम बूम बट बूम बूम बट, लोग शोर मचा रहे होते हैं, तो आप इस्तीफा दे रहे हैं। भट्ट साहब हमने तो कभी नहीं देखा बूम बूम बट। आपका टीवी छोटा है इसलिए आपको नहीं नजर आया। मेरे जरा कार्ड बड़े होते हैं, आखिर बट के कार्ड होते हैं। बट का साइज भी बड़ा होता है और कार्ड भी बड़ा होता है, तो वो बूम बूम बाटी लिखा होता है। तो जरदारी साहब के मुंह से जब मैंने बूम बूम बाट सुना तो मैंने कहा कि चलें फिर ठीक है, मैं इस्तीफा वापस ले लेता। भट्ट साहब वो बूम बूम अफरीदी होता है। यार मेरे लिए तुम्हारी बात ज्यादा अहम है या जरदारी साहब की बात ज्यादा अहम है? वो तो मेरे पीछे खड़े हैं और तुम मेरे आगे लगे हुए। भट्ट साहब जब आप खुद क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त भी माशाल्लाह आपकी सेहत ऐसी थी? शाबाश, मैं पैदाइशी बाट हूँ, मैं को बाद में बाट नहीं हुआ।
اور بٹ جس عمر کا بھی ہو اس کا سٹینڈرڈ سائز XXL ہی ہوتا ہے. اچھا بٹ صاحب پچھلے دنوں کرکٹ رولز میں بہت سی چینجز آئی ہیں, آپ نے بھی کوئی تبدیلیاں سجیسٹ کی تھیں؟ میں نے بھی 2-3 تبدیلیاں سجیسٹ کی ہیں ان کو. اچھا ہاں, ایک تو میں نے ان سے کہا کہ لنچ کا وقفہ بڑھائیں. 40 منٹ میں تو بندہ ہاتھ شاتھ دھو کے بازو ٹونگ کے بوٹ جرابیں اتار کے دری پہ بیٹھتا ہی ہے. اور دوسرا میں نے ان سے کہا کہ جب کہیں دوسرے ملک میں کوئی ٹیم جاتی ہے کھیلنے کے لیے تو اسے وہاں رکھا جائے جہاں اوپر ہوٹل اور نیچے کڑھائی کی دکان ہو. اور اہم تبدیلی جو میں نے سجیسٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کرکٹ ہو رہی ہو تو بیٹسمین کے سامنے سے نان ٹکی والا نہ گزرے, اس کی کنسنٹریشن ڈیوائیڈ ہوتی ہے. اچھا بٹ صاحب آپ کی پھر افریدی سے صلح کیسے ہوئی؟ بس اس نے میری بھوکتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. بٹ صاحب دکھتی رگ, دکھتی رگ بھی ہوتی ہے اور بھوکتی رگ بھی ہوتی ہے. کیا مطلب بٹ صاحب؟ جب اس نے یہ بیان دیا تھا نا کہ بورڈ کوئی خدا نہیں ہے, وہ مجھے بھوکا نہیں مار دے گا, بس بھوک نہیں مجھ سے کسی کی برداشت ہوتی. میں نے پھر سارے آرڈر واپس لے لیے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. چلے منگا لے کھانا, بھوک نہیں مجھ سے برداشت ہوتی.